All right, you have sent us some quiz questions to challenge us. Let's see if you can crack them. Ready? Yes. Question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। बुक लिखते हुए और ये वीडियोस बनाते हुए वी हैड सो मेनी थिंग्स जो मैंने रोक के रख ली थी। क्यों रोक के रख ली थी? यस, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस करने का मजा लाइव ही है। इतना ट्रिविया और मेरे सारे कटे हुए जोक्स हम सब कुछ मिक्स करके ना वी आर ट्रैवलिंग अराउंड द कंट्री विद अ 60-minute टाइट शो। इस शो का नाम है व्हाट्स इन अ नेम एंड द नेक्स्ट सिटी वी आर गोइंग टू इज कोलकाता। कब जा रहे हैं? Feb 8 this Sunday. Yes. We'll be at Kolkata. कितने बजे? 1 PM. यस, आधे टिकट्स बिक चुकी है। ये लिंक पे जाना आप। If you want to go aha or if you want to go haha, hopefully, please come to this show. This show is exactly for you. और अगर आपका बुक्स भी तो वो भी लेना, we'll personalize it with a stamp and your name. Okay, enjoy the first question now. Ornithology is the study of an activity during sleep. What is the study of? Onerology. During sleep तो मुझे एक ही लगता है, dreams. तू भी एक दे देना है तो नहीं, I don't have anything other than dreams. ड्रीम्स। Oh. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 यूरोलॉजी। Good Wow. one. This was sent by Savi. Thank you. Hey, thank you, Savi. Chalo. Which letter is not used in the periodic symbols? Oh wow. J and Q, I think. दो बता दे तूने। एक ही बोलना है J then. J. This question was sent by Sai, Savi, Vidhi, Momita, Ankita. Wow. Too much confidence, huh? Same question. I don't have anything. मैं X बोलने वाला पर फिर एकदम से last moment Xenon याद आ गया मुझे। Oh. Z. Zittrium. Z से होते हैं ना? Zinc. Zinc, of हाँ. course. I don't know. Zirconium. J. Woo! While Q does not appear in official elements of numbers, it does appear in temporary placeholder names and symbols for undiscovered or unnamed super heavy elements such as UUQ. अच्छा, जो अभी तक नहीं हुआ है। Oh. J stands alone as the only letter never used. Interesting, काफी cool. Okay, I get 10 points. Woo. Oh yes, you also get 10 points. चल. हाँ तो मतलब Q नहीं आता है, लेकिन जो temporary placeholders हैं, we use Q in them. Okay, good one. Okay, I'll remember it. What is the tallest mountain in North America by elevation above sea level? North America का tallest mountain. North America का tallest mountain. Mountain तो नहीं पता, range पता है मुझे, मतलब I would say Andes. North America है यार. साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में? अरे क्या है नॉर्थ अमेरिका में? Rocky Mountains. Could be. I could very wrong. मुझे ये की mountain range पता है. I know there is a peak जो D से है। माउंटेन कौन सा नॉर्थ अमेरिका में? सच में मुझे कोई माउंटेन भी नहीं पता है नॉर्थ अमेरिका का। नहीं, सॉरी गाइस। एक सेकंड। हाँ नन्ने? वो एक बाहर पोर्टर वाला है, उससे सामान लेना है। हाँ मैं लेता हूँ। माउंटेन में चढ़ के आया हूँ मैं। ठीक है, कुछ खुशी जी ने भाई भेजा है, बिल्कुल खुशी नहीं हो रही सवाल देख के। I know there is a peak डेनाली, ऐसा कुछ तो मैंने डेनाली? कभी- हाँ। मैं नीचे गया, तूने क्या किया निप्पू? नहीं कुछ नहीं किया। अरे मुझे याद आई पीक यार। अच्छा। I've covered it in a ठीक video. है, देखते हैं खुशी जी, देखते हैं। I don't इन know the वीडियो mountain. डेनाली। अच्छा ठीक है, रुक बेटे। I don't know the mountain. नहीं, माउंटेन का नाम नहीं है वो। अच्छा डेनाली। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि भाई नहीं, सच में। Go to some old video. I don't remember which one. अच्छा ओके But I've covered Denali. It has 23 countries. It covers 21.5% area of the world. Its highest point is Denali. What is this? डेनाली का मीनिंग होता है दी हाई वन। Oh. ठीक है, cool. While the former name was Mount McKinley. Oh, on the और फिर दोबारा present. रीनेम हो गया है, फिर लेकिन डेनाली बन गया। क्या हो रहा है ये? Was renamed Mount McKinley in 1896, फिर ऑफिशियली डेनाली बन गया। प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑर्डर द नेम चेंज बैक टू माउंट किनले। तो भाई ये इधर हो रहा है उधर हो रहा है। किनले से बस मुझे बिस्लेरी की बोतल पता है है। ना? हाँ। किनले से बिस्लेरी की बोतल पता है? दो अलग ब्रांड का ना। मैगी से यार मुझे सिर्फ वाइवा याद आती है। दोस्तों गोकुल भाई ने बताया कि भाई he had received hundreds of these questions and then finally he has put in 10 quick rapid fire questions Yes. जो हम खेल रहे हैं and there are 5 deeper questions तो हम Thank साथ you साथ so खेलेंगे। much. Thank We you just so put much. up like a story and a post and इतने सारे responses आए थे and thank you to Gokul bhai who sorted them out and lovely questions. मजा आ रही है। What hath God wrote was the first message sent by the telegraph encoded using सौम्या जी ने क्वेश्चन भेजा है।
मोर्स कोड. 2 words दिख रहे हैं मुझे ब्लैंक में. Encoded using or could be telephone something. टेलीफोन. वो फंस गया. बट टेलीफोन का फर्स्ट मैसेज नहीं है ये, आई नो. Morse code. God, Morse code. वाओ मोहित. What hath God wrought? Wow, the first message sent by the telegraph instrument. Wow, interesting. Soumya ji, thank you. Question 5 sent by Akriti ji. The largest species in the Felidae family has many varieties, most of which are named after their native lands, such as Sumatran, Javan, Siberian, Bengal. By what name do you and I know this species? Tiger. What? Wow. मैं क्यों खाने में था? अरे मैं species. मैंगो वगैरह ऐसा कुछ सोच रहा था. ओ varieties से तुझे लगा. हाँ. अरे आम के. मैं वाओ. Is it? वाओ. तीसरा वाला पॉइंट किसको मिलेगा? मोर्स कोड मेरे को. हाँ, दे दिया तुमने. हाँ, तो देने के बाद भी तेरा BC है अभी. पांच सवाल हुए अभी. देखो आप देखो. बट आई वाज वेरी क्लोज टू सेइंग कॉफी आल्सो. कल हमने वो स्टारबक्स में देखी थी ऐसे सुमत्रन Sumatran कॉफी. coffee, yes. सो By Monica Navedya. Who made the first accurate anatomical drawing of heart? व्हाट. वाओ. An artist. An artist doctor. अरे वाह. Who made the first accurate anatomical drawings of अगर ऐसे पूछा है मतलब कोई फेमस होगा. आई एम Famous बंदा होगा. कितना अच्छा क्वेश्चन है. एनाटॉमिकल ड्राइंग ऑफ हार्ट. थिंक ऑफ सम हार्ट की ड्राइंग बनाने के लिए they would need to know अंदर क्या है. वन पर्सन आई थिंक जो बना सकते हैं ड्राइंग. और वो थे क्या कहते हैं, बहुत चीजें आती थी उनको. लियोनार्डो डा विंची. Oh. चल जस्ट इन केस मैं एक बैड गैस ले लेता हूँ. एडिसन. Because why not? Wow. Wow. Starting around 1507, Leonardo conducted in-depth studies of the heart, often using ox and pig hearts to understand blood flow, as well as dissecting at least 30 human corpses during his life. Wow, what all has he done? Hobbies हो तो ऐसी हूँ. सच में डा विंची भाई बड़े क्रेजी लगते हैं. इनकी किताब है वॉल्टर आइजैक्सन ने जो इनकी बायोग्राफी लिखी है, और वो इतनी मोटी है मैं शुरू करती हूँ पर पढ़ नहीं पाएगा. हाँ, बहुत सारे काम किया ना. या बट इज वेरी. और ऐसी बेंजामिन फ्रैंकलिन की भी इतने सारे काम किए. उनकी बायोग्राफी इतनी सी है. इतनी सी उनकी ऑटोबायोग्राफी है. हाँ. तो विच टेल्स अस कि वो लेजी भी थे लेकिन उन्हें चाहते थे. क्वेश्चन बाय साई संतोषी एंड अंकिता चक्रवर्ती जी. In 1893, which nation in the Down Under became the first self-governing country to grant all women the right to vote? तू वेट किया ना? न्यूजीलैंड. हैं? न्यूजीलैंड? You think so? तू वेट किया. First country to give women the right to vote in 1893. Yes. We are rudderless. We need the ballot. Rudder क्या होता है? सर्च तो करते हैं क्या What is होता है. rudderless? Piece of wood or metal that is used for controlling direction of boat or plane. Oh, like अच्छा we are rudderless मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे किसी चीज को. We need the ballot. Without anyone to control something or provide. हाँ, तो women बोल रही हैं we are rudderless कि हमारे पास कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं है. We need the ballot. We need something to control. Oh. देखा निप्पू इंग्लिश में तू ऐसा हो गया. मेरी इंग्लिश अच्छी कब से निकल गई. अरे यार. Question 8 by Lindsay जी. What is special about the words uncopyrightable and dermatoglyphics? Wow. Uncopyrightable and dermatoglyphics. They have all the vowels. सेकंड वाले में नहीं दिख रहा मुझे. एक A E I O U तो नहीं. यू नहीं है. फर्स्ट वाले में सारे हैं. सेकंड वाले में यू नहीं दिख रहा मेरे को. तो इट हैज टू बी समथिंग एल्स ओनली. Wow, very very interesting. Uncopyrightable. नहीं भाई मैं तो गिव अप करके बैठा हूँ. नहीं, just all unique letters. Like there is. नो रिपीटिंग लेटर. हाँ, but then that. वो तो बहुत सारे वर्ड होते हैं. कितने लेटर के हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. These are only 15 letter words. Which are no repeating. Oh. These are only 15. These are the only 15 letter words. Where all 15 letters are unique. Are different. Of course निप्पू. Is it? क्यों? 26 तो लेटर है हमारे पास टोटल. मतलब 11 नहीं है. वाह. ओके देखते हैं. Let's see. Longest English words without repeating letters. wow.
I did Wowza. not know. This fact is uncopyrightable. Question by Akshit Singh. This former Indian cricketer was known for his 6 sixes. His wife is an actress who played an extra in the Harry Potter movie franchises. What's her name? Wife का name? अरे रुको. अरे I know wife का name यार. क्या बात कर रहे हो? हैरी पॉटर में इंडियन क्रिकेटर की वाइफ. क्रिकेटर इज युवराज सिंह आई थिंक. हेजल, आगे नहीं पता क्या नाम है. हेजल. नट. अरे यार हेजल हेजल. हेजल सिंह. युवराज सिंह की वाइफ दैट है. इज वेरी. हाँ मुझे बॉडीगार्ड में नहीं थी जो करीना की Correct, फ्रेंड बनी पर थी. हैरी पॉटर. वो एक्स्ट्रा होगी कुछ. हेजल की. चो यस आई गेट द पॉइंट नो. यस. वो वाओ. ओ युवराज सिंह की वाइफ कभी ऐड नहीं कर सकती है. इट वुड बी कॉल्ड कीच ऐड. मतलब कीचड़. अरे हाँ. पर हेजल कलर की होगी तो मे बी इट इज गुड. ये भेजा हमें आशु साहनी जी ने. what animal laughs giggles when tickled? Just for the joke of it I will say hyena. देख मुझे लग रहा है इसमें ट्रिक है. हाँ You would think it's hyena, हाँ. but उन्होंने बोला when tickled. tickled Tickled में I would say monkey. मैं ह्यूमन बीइंग जैसा है, हो सकता है. but I think इसमें नेक्स्ट लेवल ट्रिक है. All animals laugh. नहीं टिकल में मुझे भी लगता है कभी मंकी कुछ भी को. किया तूने? नहीं. बिल्ली को? नहीं भाई मैंने नहीं कुछ. क्या पता हंसे, but okay. I would say all. जस्ट गिव वन आंसर. क्या all. है ये All क्या animals. आंसर है? अच्छा monkey. ओके मंकी एंड हाइना. हाँ चलो. okay. Rats. You are What? so far. Rats emit ultrasonic chirps associated with play and tickling. Wow. The sounds are too high for human ears, requiring special equipment to detect. अच्छा ऐसा नहीं होगा कि आपने करी और आपको सुनाई भी नहीं देगा. ओह Good one. wow. Nobody gets this point then. Yeah. ठीक है, अब नेक्स्ट 5 सवाल दोनों खेलेंगे and both of the all 5 of these questions are worth 20 points. Because why not? मैं आगे कैसे आऊँगा? ठीक है. हाँ. Bonus fun question. ये भेजा है गुरु प्रसाद जी ने. Where did Momo originate? NCR और तिब्बत? भाई I was originated in गुड़गांव, हरियाणा. हरियाणा. 122001. आप बताओ. हाँ तो एनसीआर हुआ ना फिर. हाँ. जिसने भेजा है वो भी हिसार से ही है. चलो. और वो भी खाने की चीज़ है, प्रसाद. बोथ. देखा, ऐसे भी आंसर हो सकते हैं. राउंड 2. Question 1 by Pavitra ji. In April 2006, the then highest populated country imposed a 5% tax on disposable eggs to reduce waste of natural resources by overconsumption. Few techniques associated with eggs are Vulcan, chicken claws, scissor hand. There are several etiquettes surrounding the usage of eggs across Asia, and a specific way of placing eggs in a bowl is frowned upon since it resembles a ritual that symbolizes feeding the dead. Feeding the dead. What is eggs? पवित्रा जी ने बेंगलुरु से भेजा है कुछ Wow. डीप क्वेश्चन. मैंने So- ऑन करते रहना कैमरा. मैं देख के आती हूँ. ठीक है, तो अपना अपना लिखना है अब. ठीक है, इस पे. कोई उस जमाने की हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. ओके देन. हाँ. ओके. ऑन डिस्पोजेबल एग्स. यार आई एम राइटिंग वन आंसर जस्ट बिकॉज. चिकन क्लोज, सीजर हैंड्स. टेक्निक्स के नाम है वल्कन, चिकन क्लोज एंड सीजर हैंड. ओके. A specific way of placing eggs in a bowl is frowned upon. सिंस इट सिंबलाइजेस फीडिंग द डेड. ये फीडिंग द डेड क्या है? Feeding the dead क्या होता व्हाई इज फीडिंग रिटन लाइक दैट? है? वल्कान क्या होता है? वल्कन तो मैंने तो एक चीज. स्टार ट्रेक में होता है ना वल्कन तो. क्या? हाँ. मैंने नहीं देखी है स्टार ट्रेक. सो यू वॉच स्टार ट्रेक? व्हेन? मोहित? आई वॉच्ड बिग बैंग थ्योरी, उसके अंदर वल्कन होता है. देख. ओके, हाउ आई एम थिंकिंग. आई थिंक वी कैन क्रैक दीज क्वेश्चंस टुगेदर ऑल्सो. बट ओके, हियर्स व्हाट आई एम थिंकिंग. डिस्पोजेबल एक्स है जो भी है, इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेबल, तभी उस पर टैक्स लग रहा है. अगर ऐसा हुआ कि फूड वगैरह, तो इट इज़ नॉट कैलकुलेटेबल. मतलब जो वेस्टेज फूड है तो उसको कैसे कैलकुलेट कर, कितने का बट है? यू कैन कैलकुलेट व्हीट फॉर एग्जाम्पल. वीट. द ग्रेन ऑफ द फूड.
वजन से हाँ, वेट पे टैक्स तो लगा सकता है तू। वीट पे लगाता हूँ, डिस्पोजेबल एक्स पे। देख, वन थिंग आई नो इज एक डिस्पोजेबल इनकम भी कोई चीज़ होती है। हाँ पर नहीं मोनू, इनकम का क्या वो है। माय आंसर। अच्छा तूने लिख लिया है क्या? हाँ, I've written अच्छा तो मैं भी कुछ लिख लेता हूँ ना। आई हैव रिटन समथिंग। मैंने भी कुछ तो लिखा है। ओके तो डिड्यूस करते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री क्या सोच रहा है तू? चाइना। चाइना, ठीक है। और एशिया भी नीचे, तो हाँ। इट्स ऑल चाइना आई थिंक। तो चाइना ने कुछ सम डिस्पोजेबल के ऊपर कुछ वो लगाया, वल्कन, चिकन क्लोज, सीजर हैंड। सो वल्कनाइज्ड रबर होती है एक, आई जस्ट पुट रबर, बट आगे पीछे कोई सेंस। ओ वो जो रबर पे सल्फर डालते हैं ना ओ टू मेक द टायर, या मे बी। दैट इज ऑल आई नो, पर उससे कोई आगे पीछे कोई सेंस नहीं है। मैंने पता है क्या लिखा है? मैंने लिखा है फ्लावर्स। मैंने लिखा रबर। आई डोंट नो, मैंने फ्लावर्स को लिखा, मुझे लगा ठीक है, सीजर हैंड्स ऐसे कुछ कटने वटने का कुछ हो लिखा। सकता Okay. है। चलो चॉपस्टिक्स। क्यों नहीं सोचा ये ऐसे ऐसे करते करते भी? Chopsticks should not be left vertically stuck into a bowl of rice because it resembles a ritual of incense burning that symbolizes feeding the ओह dead. माय गॉड, वाओ, सच में चॉपस्टिक को ऐसे रख देंगे तो अगरबत्ती जैसी लगती हाँ। है। Okay, now we know what not to do when in China. हाँ भाई, Chopstick लेके यूनिट ऐसे गड़ा दिया हमने तो। वाओ, गुड वन, मजा आया। भाई this was very good. इन chopsticks हम chop नहीं करते हैं, फिर भी chopsticks. Oh, that They should is be very hold sticks. interesting. Oh, Pick sticks. पिक स्टिक्स। क्या पिक नाम स्टिक्स है? कितना अच्छा नाम होता है। देखा, पिक स्टिक्स नाम का ब्रांड का एक चॉपस्टिक की कंपनी होनी चाहिए। क्वेश्चन 2 फिर से पवित्रा जी से है। अच्छा। और यही वन लाइन का क्वेश्चन भी हर्षित जी से फैनी रेनाल्ड और प्रियंका जी ने भेजा था। हाँ? हाँ। अच्छा, ओके। ठीक है, नेपो पढ़ो। Oh, this European country with more than 790 adjacent islands is primarily in the Pelagos of the- archipelagos of the Hebrides and Northern Isles. and Northern Isles. The country's population is about 5.4 million, and the national animal of this country is unicorn. Yes, you heard it right. It's unicorn, as it symbolizes purity, innocence, and power in Celtic mythology. Which country is this? I know. धोखे से, this is also a question which I think we had kept in our very first quiz Yeah. if I'm not wrong. Yep. है ना? We know it, we know it, we know it. अब I hope you remember it right. मुझे सिर्फ सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट से नहीं पता, मुझे एडजेसेंट आइलैंड वगैरह, बट सेकंड पार्ट यूनिकॉर्न, आई थिंक इट्स Scotland. स्कॉटलैंड, है ना? अ ड्रीम कंट्री। Woo! Scotland it is. कुत्ते जैसा बैठा हुआ यूनिकॉर्न। हाँ, जैसे उसकी पूंछ भी ऐसी सी कैसी सी है। हाँ, चेन से बंधा हुआ है क्या? देखियो, नहीं, वो तो उसको पूरा वो एडॉर्न करा हुआ है आई थिंक। ये नीचे ये पैरों में इसके। It really looks very weird. वाह, नेशनल एनिमल है, पता नहीं क्या। But nice. एक ये मुझे नहीं पता था कि कंट्री with more than 790 adjacent islands. है ना, होंगे उसके छोटे छोटे। Very interesting. ये हर्षित यो वही है क्या दिल्ली से जो हमसे मिले थे? Yes, yes. So we met him last year in Comic Con and then again in our biggest show so far in World Book Fair also he was Yeah. there. And he's really nice, really sweet boy. Question 3 has been sent by Ashman Dhingra. माइनक्राफ्ट वॉल्यूम अल्फा, ये नाम है। दिस साउंडट्रैक इज द बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम ऑफ ऑल टाइम। माइनक्राफ्ट वाज कंपोज्ड बाय द जर्मन कंपोजर C418, नाम है उनका, ठीक है। It was inducted into the US Library of Congress National Recording Registry in April 2025. It is an honor given to the recordings that are culturally, historically, and aesthetically important and reflect the heritage of the United States. Okay. Till now, only 2 video games have received this honor. If Minecraft is the second one, oh wow! Which video game was the first one to receive it, whose soundtrack named Ground Theme was composed in 1985 by Koji Kondo? I guess. I have a guess. I also have a guess. Last line gave a little too many hints. Okay, so this is crazy good to know. And this is very beautifully framed question. Yes. बहुत मजा आई जहाँ Yes. जहाँ से वो ले गए। This is very good to know कि Minecraft का कोई म्यूजिक है वहाँ पे, एंड सेकंड म्यूजिक कोजी कोंडो से क्या लगता है तेरे को? Japanese. समथिंग जापानीज, और 1985 है, समथिंग पुराना है, पर Yeah. ग्राउंड थीम से क्या लग रहा है? That I don't know. मैं तो जापानीज गेम से एक ही गेम, हाँ, कौन सा? मारियो। हाँ, मारियो। ता 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 ता।
मुझे उसका ना दो एक अंडरग्राउंड लेवल भी होते हैं। ये इस ग्राउंड पे खेलता है और एक अंडरग्राउंड होता है। बट रियली इंटरेस्टिंग। C4 सुपर मारियो ब्रदर्स। Oh. बचपन में कौन कौन इसको सुपर मारियो ब्रोस बोलता था? है मैं ब्रदर्स ही बोलता था। नहीं ब्रो भी बोलता था। Bros? अभी भी ब्रो ही अभी तक ब्रदर्स नहीं बोलता। वार्नर ब्रोस। हाँ यार मारियो खेलने का मन कर गया। ये वर्जन दिस इज अ वेरी दिस इज योर 8 पिक्सल वर्जन नो 8 बिट 8 बिट। ये मुझे नहीं पता थी गाइस, आपको पता है ये बात? मुझे नहीं पता थी। मैंने मोहित से पूछी ये 8 बिट क्या होता है और 64 बिट क्या होता है। मैंने गॉट टू नो अपने जमाने के मोस्ट ऑफ द गेम्स वर लाइक 8 बिट। निंटेंडो के सारे गेम्स 8 बिट गेम्स थे, मतलब शुरू वाले हर चीज 8 बिट थी। व्हिच इज द पिक्सल? नहीं नॉट पिक्सल। नो व्हिच इज व्हाट? ओके ओ यू विल हैव टू एक्सप्लेन लंबा लंबा। नहीं ओके। सो उस जमाने का हर चीज 8 बिट था, कंप्यूटर्स भी, कैलकुलेटर्स भी, ये भी। 8 बिट क्या होता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स अ कंप्यूटर प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट वंस। तो जो भी उसको डेटा चाहिए उसको 8 बिट, जैसे तेरे को बोलूंगा कि आई हैव टू टॉक टू यू बट आई कैन यूज ओनली दोज वर्ड्स व्हिच फिट व्हिच आर एट मैक्स 8 लेटर्स लॉन्ग। तो सब कुछ छोटी छोटी बात करनी पड़ेगी। आई कैन नॉट टॉक टू यू, आई कैन नॉट टेल यू स्ट्रेस की डोली भी लिया। हाँ नहीं, सिंपल और सिंपल। अनकॉपीराइटेबल। आई कैन नॉट टेल यू अनकॉपीराइटेबल। मैं तुझे बोलूंगा नॉट कॉपीएबल। 3 अलग तरह करके भेजूंगा। तो ऐसे ही व्हेन इंफॉर्मेशन इज सेंट लाइक इन चंक्स ऑफ 8 बिट चंक्स व्हिच इज दैट इज 8 बिट कंप्यूटर। तो उसमें लिमिटेशन होती है, लाइक ग्राफिक्स इतने क्लियर नहीं है। करेक्ट, लाइक फॉर नॉन टेकी पीपल लाइक यू एंड मी, लाइक यू एंड मी, ये इस तरह की पिक्सेलेटेड जो है इस आज जमाने का। हाँ। जैसे बिट्स बढ़ जाएंगे वैसे ही इनकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, पिक्चर की, ऑडियो की, हर चीज की। मोहित समझ गए हम। अच्छा चलो सॉरी मैं एक्सप्लेनिंग। ओके क्वेश्चन 4 सेंट बाय स्वर्णदीप भौमिक। ठीक है। This country has a polling station set up for a single voter. It is located deep inside a jungle in the western part of the country, guarded by security forces. Can you guess the country? Bragging bonus point के लिए can you guess the place in the country? Okay. एक और bragging bonus के लिए can you guess why only a single person is there in the constituency? Wow. Okay. It is located deep inside a jungle in the western part of the country. Western होता है western part of the country. ऐसा कोई कंट्री जिसके वेस्ट में जंगल हो? Okay, I have a guess, but I'm just trying to think of a reason as well because पहले गैस लिख देते हैं। नहीं आगे ब्रैगिंग बोनस भी तो लिखेंगे ना मैं। अभी लिख दें? हाँ और क्या। हाँ But you know there is something. कर दिया मैंने। There's something over there guarded by security forces. कुछ तो कर दिया मैंने। चलो मोहित बताओ, मुझे लग रहा है मैंने कुछ बहुत सिली कर चुका है। हाँ मुझे भी लग रहा है मैंने कुछ तो सिली किया है। ओके कंट्री पता क्या है? इंडिया। ओ मैंने भी इंडिया लिखा है। हाँ मुझे लगा कुछ तो क्रेजी होगा। सेम आई थिंक इंडिया में ही है। ठीक है फिर आगे गेस द प्लेस इन द कंट्री। लिखा है अंडमान एंड निकोबार। वो तो ईस्ट में है। वेस्ट बंगाल तो ईस्ट में होता है। मैंने लिखा है रणथंबोर। पता है मैंने वेस्ट बंगाल सोच के ही लिखा क्या ये वेस्ट ही है। ओह गॉड आई डिडंट डू दिस। यस यू डिड। रणथंबोर। ओह वाओ। जंगल तो मुझे ईस्ट वेस्ट साइड में जंगल तो मुझे रणथंबोर। अब मैं एक बार और सोच लूं बस ऐसे ही। अब क्या? नहीं अब तो हो गया। If I want to think about it, अरे अभी मैंने गलत सोचा, जस्ट सोचने के लिए पॉइंट मत देना। पॉइंट I तो think it is कंट्री के हैं। कच्छ में जंगल भी है। अब वहाँ पे अकेला बंदा क्यों रहता है? मैं लिखा उसका घर है वहाँ पे इसलिए। ऐसे इंडिया रणथंबोर हिज होम इज देयर। हिज क्यों तूने अज्यूम क्यों करा हिज है? माय हिज आल्सो इंक्लूड ऑल द हर। देयर होम इज देयर। भाई मेरे हिज में हर भी है। अच्छा वाह वाह। कॉन्ट्रैक्ट जैसी लैंग्वेज। मैं तो मस्त था। मैं ना गाइस सॉरी मैं बिल्कुल ही वैसे ही और सोच के वैसे चले गए। Then I've written Andaman and close to Sentinel Islands, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस इसलिए इतनी है। बट लक्षद्वीप हो सकता है क्या? सोच रही हूँ। अंडमान तो लक्षद्वीप हो गया। देखते हैं आंसर देखते हैं। स्वनदीप जी ने पता नहीं क्या दिया है, देखते हैं। हाँ। इंडिया ओके 20 पॉइंट्स तो मिलते हैं अपने को। नाइस। हाँ अब देखते हैं। The polling station is Gir, of course, Gir Forest. Gujarat is created for one voter to uphold democratic rights. The voter Manhant Haridas Udasin है क्या ये? Oh wow. Is a custodian of a temple
Of course, इसीलिए. Wow. Deep in the Gir forest, next to a stream infested with crocodiles. What? More than 500,000 people visit the forest each year, riding on open-top jeeps as they try to spot prowling Asiatic lions. leopard, jackal, and Hyenas. hyenas. Hey. Wow, that is so interesting. Wow. मतलब वहाँ पे मंदिर है मैं और ये- वो उस स्ट्रीम के पास जहाँ क्रोकोडाइल्स हैं एंड Yeah. पीपल विजिट इट. ओह माय गॉड, दैट इज ऑसम. Okay. आगे भी है. In the state of Arunachal Pradesh in northeast India, there is another single voter polling. Okay. Malogam for voter Solekha Tayanang. ओह वाओ, अब इनके लिए अकेले में क्यों है, ये आपके लिए सवाल है. वाह. आई एम good सो one. ग्लैड. पर उनके अकेले के लिए और वो वोट भी कर रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं कि अब तो बना वहाँ- दिया उनके लिए वोट तो करना ही पड़ेगा. वहाँ का वोटर टर्नआउट 100% है. हो तो बोले मेरे को करना ही नहीं है, तो मेरे को करने का ही नहीं है. तुम्हारा काम है बनाने का, तुम हटा भी नहीं सकते हो, पर मेरे को करने का भी नहीं है. मगरमच्छ जा रहे हैं वोट करने उसके नाम पे. अरे चलो. यार मोहित यार. लास्ट चलो. सवाल. निप्पू पढ़ो चलो. अच्छे से ये. Question by Shripad Rojji. The term for a very common internet activity comes from a 9th century Persian mathematician named Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. मुझे तो अभी से सूझ मेरे को गया. भी सूझ गया. His name was Latinized over the centuries, eventually becoming a word we use today to describe a set of rules or processes followed by a computer to solve a problem. What is this 9th century mathematical term that is now associated with our social media feeds too? I think this is one of Mohit's favorite trivias. He keeps going into this rabbit hole often. Right, Mohit? Yeah. He finds it very, very interesting. कुछ बहुत अच्छे इस तरह से टर्म्स आए हैं इस ओरिजिन से. Yeah. मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी. ठीक है निप्पू जी बताओ. एल्गोरिदम. इट इज एल्गोरिदम. उन्हीं का नाम है अल्गोरिज्मी. अल्गोरिदम अल्गोरिज्म 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 अल्गोरिदम. यस. The concise book of calculation by restoration and balancing, commonly known as Al-Jabr, written by him in an Arabic language mathematical treatise on algebra, of Yeah. course. और मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसी शॉर्ट में बताऊंगा. है मेरे पास एक ट्रिविया. वेट बता दे यार. करो, वेट करो, अब शॉर्ट का वेट करो. अरे बता दे. हाँ. But this is the thing that you keep telling me, algebra का origin and how that is also like algebra से algebra Yep. is also so fascinating. Wow. वाह दोस्तों, इसी बात पे एल्गोरिदम के लिए लाइक शेयर और वो करना ना बोले, ठीक है. But loved it. Thank you guys. Thank you for sending these questions. If you want to send more questions, आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं पे लिंक मिल जाएगी. These were lovely questions. Thank you for taking the effort. But you made better questions than we do. दोस्तों वीडियो तो खत्म हो चुका है, but there is a lot of crazy trivia still left that you can only experience in our live shows. आ जाओ दोस्तों, मस्ती करेंगे. आ जाओ. लेट्स हैंग आउट टुगेदर. दूध कोला पियेंगे. So that's the show. Thank you so much. See you in the next episode. Say shawa shawa mahiyate shawa shawa. 10 पॉइंट तेरे, 10 पॉइंट मेरे. 2020 थे निप्पू. 20 पॉइंट हाँ. तेरे, 20 पॉइंट मेरे. भाई डाइट कोक इज ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी. नाइसली फ्रेम्ड. एक Good. सेकंड रुके. ढक्कन गिर गया निप्पू. ढक्कन गिर गया. क्या क्या बोल जाती हूँ मैं. कट कर दिया करो. नहीं, बिल्कुल ये वाला कट मत करना, ये- नो